You know, the UN used to be more relevant in 1950s, 60s. Huh? But what happened was, as the number of countries grew, and those five who were the self-selected chaudharis of the system, they actually, see, it was easier for them to dominate a smaller number of countries between whom there was a big gap, that their power or their authority was there, rest of the world was there. What has happened in the last 30, 40 years? That is no longer the case. You know, I'm now taking India itself. That, you know, today the five permanent members are not the five largest economies of the world. That is just one indication I'm giving you. Also, what has happened is, with the passage of time, other countries have developed a confidence to challenge, saying, I don't agree with what you are saying. Then they are fighting among themselves also. That, you know, we've seen in Ukraine that they could not, even themselves come to an agreement. So, and even during COVID, everybody said COVID is, the worst thing which has happened. It was, if you look at the number of people who died, the number of deaths in the world would compare with what happened in a world war. But what was the role? Us samay, think back. Did anybody think UN was going to help anybody in COVID? So the fact is, in many ways, the limitations of UN are showing. Now, in normal life, in anything, when some product or some organization, any organization gets older, what do? You bring in newer people, younger people. You bring in new energy. You broaden out. Even if it is company, you will get more stakeholders. You will. Now, what is the normal process of renewal and change, which is applicable everywhere, in every walk of life? That natural process of change today is being denied in the UN. It is being denied in the UN because there are just a few countries. Because when you ask me what are our prospects, 20 years ago people would say, yes, India ko hona chahiye, one day they will get there. With each year, definitely with each 5 years, 10 years, I can see people actually feel, no, India must be there. We actually feel strongly you are not there. Sometimes when I meet other foreign ministers or leaders, before I bring it up, they tell me, ये बहुत अफसोस की बात है कि आप नहीं होते, अगर आप होते तो कुछ और होता. That feeling is very much there, and people also realize our value, because just I give you अभी जो हमारा G20 का अनुभव जो था, G20 after the Ukraine conflict started was in a very difficult situation, because between Russia and Western countries there was a complete disagreement, and many of the developing countries, जो हम global south कहते हैं, they felt that their interests on trade and debt and these were being ignored. Now, people did not think that there will actually be a consensus, a sarv sahmati in the G20. There was no expectation that the Delhi meeting in September will produce a united outcome. But we managed it. Now, why I'm citing that to you is, if a country has such a capability, such a country in the UN Security Council can actually contribute as well. But I would say, with each passing year, the feeling in the world is India ko hona chahiye. I can feel that support. Like in many cases, you have to continue, you have to persevere. The world does not give things easily and generously. कभी-कभी लेना भी पड़ता है. पहले हमारे देश में ये एक महामारी आई थी, स्पेनिश फ्लू. हमारे करोड़ों लोग मरे उस समय, और ज़्यादा मृत्यु जो है
वो रोग के कारण नहीं हुआ था, वो भूखमरी के कारण हुआ था। तो जब ये कोविड का समय आया, आप याद करिए कि कितने लोग जो हैं बिना काम के रह गए, कितने लोग अपने घर गए, तो हम उनको उस स्थिति में छोड़ सकते थे क्या? तो ये हमें तो बल्कि गर्व का विषय होना चाहिए कि हम जो हैं आज हमने अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया है। और ये मैं कहूँगा इसकी बहुत साउंड इकोनॉमिक्स भी, कि इसका लाभ आपको रूरल इकोनॉमी में दिखाई देता है। कि आज हमारी रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ अगर आप देखें कि जो अनाज आपको कभी अब 10, 15, 20 साल पहले आप याद करें, लोग कहते थे कि अनाज खरीद के गवर्नमेंट जो है वो साइलोज में रखती थी, वहाँ सड़ते थे वो। तो अब सड़ने के बजाय ये सर्कुलेशन में, और अच्छे इसका जो लक्ष्य जो है वो है कि माने आप किसी को, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नॉट इन हेल्थ, नॉट इन न्यूट्रिशन, नॉट इन फूड एक्सेस। हाउ कैन वी से वी वांट टू बी डेवलप्ड कंट्री एंड देयर हंग्री पीपल? सर, सोशल मीडिया पे आजकल कई तरह के नैरेटिव्स होते हैं जिसमें भारत को अलग अलग तरीके से लोग इवैल्यूएट करते हैं। आपके अनुसार आज के यूथ में वो कौन से इंडिकेटर्स को फॉलो करना चाहिए जिसके बेसिस पे वो खुद का एक परसेप्शन और खुद का एक थॉट प्रोसेस बना सकें? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले मैं यूथ को कभी मैं एडवाइस नहीं देता क्योंकि वो जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ? और मुझे पूरा भरोसा है उन पे कि अगर जो अमृतकाल में देश आगे जो ले जाएंगे विकसित भारत की तरफ, मुझे पूरा भरोसा है कि युवा पीढ़ी, भारत की युवा पीढ़ी ये कर पाएगी। अब और ये भी आप पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में, वो तो माने डबल प्रॉब्लम है। तो नहीं, सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया जो है इट इज़ अ रियलिटी। कुछ लोग हैं जो हमारे पीढ़ी के हैं जिनके लिए इसको माने एडजस्ट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग बहुत खुल के बात करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, और ऐसे देते हैं जैसे अगर वो न्यूज़पेपर में लिखते हैं या कहीं कैमरा में भी देते, वो और माने कहूँगा क्या अपने थोड़े ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल के साथ कहेंगे। तो पर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये एक किस्म से ये एक नई एनर्जी बन चुकी है, और ये एनर्जी जो है एक हमारी डेमोक्रेसी को भी बहुत मजबूत बनाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी होता क्या अल्टीमेटली इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस। तो आई नो एडवाइस बट गुड विशेस। पिछले सालों में इंडिया चाइना के बीच में थिंग्स हैव नॉट बीन गुड एंड नॉट बीन ईजी। एंड इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट्स थी, सालों से थी, और ये लिखित माने ये कोई ऐसा कोई समझौता जो था माने कोई इनफॉर्मल नहीं था, बहुत स्पष्ट था। और ये था कि हमें अगर अपने बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विल, एक तो जब तक पड़ोसी हो आपस में, जब तक सीमा में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो तो जो रिश्ते जो हैं आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये उनको भी पता था, हमें भी पता था, इसीलिए। और अगर आप देखें जब से हमारी रिश्ते जो हैं नॉर्मलाइज हुए हैं, 62 में युद्ध हुआ था, उसके बाद 14 साल लगे हमें एक एम्बेसडर वापस भेजने में, उसके बाद 26 साल लगे 62 के बाद पहला प्रधानमंत्री गया, राजीव गांधी जी गए, चीन गए, और 93 में और 96 में 2 अग्रीमेंट्स हुई थी, उसके बाद भी हुई थी 2005, 6, 12, 13। और इसका जो निचोड़ ये था कि दोनों साइड जो हैं वो जो लाइन जो बनी है, क्योंकि हमारी सीमा जो है वो म्यूचुअली अग्रीड नहीं है, कि दोनों साइड जो हैं वो फौज कोई संख्या में फौज नहीं लाएंगे वहाँ, और अगर कोई मूवमेंट भी होगी इस संख्या से ज़्यादा वो दूसरे साइड को बताएंगे और तभी मिलिट्री मूवमेंट होगी। अब 2020 में इन्होंने चीनियों ने इसका उल्लंघन किया, और
अग्रीमेंट होने के बावजूद वो बड़ी संख्या में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अपने मिलिट्री फोर्सेस लाए। और उसके बाद आप जानते हैं कि वो गलवान में वो घटना हुई और अभी भी हमारी भी फौज वहाँ और ये मोदी जी ने कोविड के समय में, जब आप जानते हैं पूरा लॉकडाउन चल रहा था उस समय देश में, तो लॉकडाउन के स्थिति में तब भी हमने मिलिट्री मूवमेंट की और बहुत माने बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट की। और तब से हमारी फोर्सेस भी हैं वहाँ, उनकी फोर्सेस भी हैं, आमने सामने हैं वहाँ। तो हम तो चाहते हैं, ये तो हमने तो किया नहीं है, पर अगर हमारी सीमा में फौज आए तो हमें तो अपना डिफेंस तो देखना ही होगा। तो हमारी जो अप्रोच है उनको, और ये मैंने खुद मेरे जो काउंटर पार्ट हैं उनको समझाया है कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा, तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे, वो असंभव है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ झगड़ा करो और वहाँ बिजनेस करो। व्हाट इज हैपनिंग विद अ कंट्री लाइक इंडिया, आफ्टर ऑल व्हाट आर वी? वी आर, I would say, at least a 5,000 year civilization, the most populous country in the world, physically one of the largest countries in the world, 5th largest economy of the world, who have our nature is to be independent. We cannot and we should not be part of somebody else's subsidiary of somebody else's enterprise. So, because we are independent, we have to learn how to manage our interests by dealing with different people. So it can happen. It happens in our daily lives. Sometimes you may have some acquaintances, वो उनसे बात नहीं करते, पर you don't want to be caught in that situation. तो मैं आपके साथ भी ठीक रखता हूँ, उनके साथ भी ठीक रखता हूँ, अलग अलग पार्टियों में जाता हूँ. That is अब सब लोग अपने पर्सनल लाइफ में तो कर लेते ना, हाँ? तो मैं विदेश नीति में वही करता हूँ.